سے قرآن حدیث کو تو ہم مانتے ہیں، وہ تو ہو گیا ان کا ہم سے سوال، لیکن ہمارا ان سے جو ایک بھی سوال ہوا ہے اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے کے گیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ سوال اگر ایک آپ نے کرنا ہے تو ایک سوال کا جواب پھر ادھر ہماری طرف سے بھی سن کے جواب دے کے جائیں گے۔ ایک اصول ہونا چاہیے۔ اور محمد دین سیالوی صاحب کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب وہ براڈ کا کہہ کے گئے نا، براڈ ایک جو ہوسٹ ہو نا وہ نان بائیسڈ ہو، ان بائیسڈ، جو مطلب کسی کی سائیڈ نہ لے، چاہے وہ ہمارے اس سے نہ ہو، خیالات سے، ہمارے مذہب یا ہمارے اس سے نہ اتفاق رکھتا ہو، لیکن ان کے سے بھی رکھتا ہو نا، لیکن اس بیچ میں یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگوں کو بولنے کا نہ سوال کرنے کا موقع ہو نہ حق ہو، کیونکہ یہ اکثر میوٹ لگا دیتے ہیں، میں نے ان کو جی دیکھا ہوا ہے۔ سہیل بھائی مفتی جی صاحب جی تشریف لے آئے ہیں۔ مفتی مبشر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویلکم مفتی صاحب۔ سیالوی صاحب کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے جناب؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ ٹرو مسلم صاحب آپ نے حوالہ پوچھا تھا، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 127 ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، یہ جملہ لکھا ہوا ہے جلد نمبر 19 صفحہ 127، اور کتاب ہے اعجاز احمدی اور اس کا صفحہ نمبر ہے 18۔ اچھا یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ ایک تو غبی ہوتا ہے نا، غبی لکھا ہے انہوں نے، غبی کا مطلب تو جیسے سست بھی ہوتا ہے نا، اس طرح کا میرے لیے۔ وہی بتا غبی، بات بھول جانے والا، جسے نادان کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ مطلب اس کا معنی کوئی پازیٹیو میننگ میں نہیں آتا۔ جی پازیٹیو میں نہیں آتا، یہ نیگیٹو میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا تھا؟ جی جی اچھا اچھا، چلے ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، یہی میں نے حوالہ لینا تھا۔ ایک اور حوالہ لے لیں، روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ 410 ہے، اور زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے، اس کے اوپر بھی صفحہ 235 ہے جی براہین تو احمدیہ کا۔ جی جی یہ جلد 21 اور صفحہ 410 کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ جی بالکل، میں نے کہا براہین احمدیہ کا صفحہ 235 ہے، آپ نے بالکل روحانی خزائن کا صفحہ بتایا۔ جی پڑھ کر سنائیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا، درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے۔ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں، اکثر ابو ہریرہ ان کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن سے احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ انہی سے مروی ہے، تو ان کو یہ کہا کہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا، قرآن کے سمجھنے میں ناقص تھے، پہلی بات۔ دوسری بات ان کی درایت کمزور تھی۔ تیسری بات وہ نقال تھے، نقل کرنے کا مادہ تھا۔ اور چوتھی بات فہم ان کا کم تھا۔ پانچویں بات وہ اکثر غلطیاں کرتے تھے۔ چھویں بات کہ وہ ٹھوکر کھاتے تھے۔ 6 باتیں منسوب کی ہیں مرزا قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور یہ صرف حضرت ابو ہریرہ کی ہی توہین نہیں،
सारे सहाबा की तौहीन करता है मिर्जा कादियानी। जी, यहाँ शाह साहब मैं ये भी बात अर्ज करूं, मिर्जा कादियानी साहब ने जो एक और झूठ बोला है, उन्होंने कहा तफसीर सनाई में ये सारी बातें हजरत अबू हुरैरा के बारे में लिखी हूँ, जो कि झूठ है। तफसीर सनाई में ऐसी बातें नहीं है। नहीं है, कहते हैं तफसीर सनाई से पीछे तफसीर सनाई का जिक्र है, तो ये झूठ बोला। अच्छा, ये सातवीं चीज कर लें कि साहिबे तफसीर निसाई की तरफ इन्होंने झूठ मंसूब की है। अच्छा, अगली बात ये है कि ये बात बराहीन अहमदिया के अंदर कह रहे हैं, और बराहीन अहमदिया वो किताब है कि मिर्जा कादियानी खुद इस किताब के मुतल्लक कहता है कि ये किताब मुझे इल्हाम हुई है, ये मैंने इल्हाम पा के ये किताब लिखी है। ठीक है, तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये मिर्जा कादियानी ने अपनी तरफ से बात नहीं की, बल्कि अपने खुदा काले कालू और यल्लाज से ये किताब उसको इल्हाम हुई थी। आबिद भाई, बात समझ आ गई है? हाँ जी, आ गई है बिल्कुल आपकी बात। आपने बड़े अच्छे अंदाज से समझाया और आसान लफ्ज़ों में। ये बात तो हर एक को समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, मैं आज आपकी साबका सारी हिस्ट्री जो है हमारे सामने, उसका एक नया रुख देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप ताइब हो चुके हैं और मिर्जे कादियानी पे लानत कर चुके हैं, तो ऐसा ही है? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि वाकई मिर्जे ने बड़ी गुस्ताखियां की, बड़ी तौहीनें की हैं। चूँकि मैंने खुद वो अमर नज़ीर साहब की ब्रोड पे बैठता था ना, तो जब एक बात आपको सामने नज़र आ जाए तहरीरी शक्ल में, तो फिर तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। आप फिर भी अगर नहीं समझ सकते तो फिर आप गबी हो। मतलब एक सबूत दिखा दे बंदा दलाइल नहीं, के वो तो चलो साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो आपके ऊपर एक छाप लगी हुई थी कि आप कादियानी हैं, उससे आप नहीं, ताइब वो हो तो चुके हैं। अमर नज़ीर साहब हैं जो उनके साथ और बैठते हैं, वो तो मुझे कादियानी नहीं कहते। वो तो मैं तो उनकी मैं ब्रोड पे क्या कह कभी रहा बैठा रहता हूँ। हूँ, अच्छा, मैं क्या बोले। कह रहा हूँ, आप मेरी बात की तो तवज्जो ही नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आमिर नज़ीर साहब की बात या उनके साथ जो बैठते उनकी बात तो कर ही नहीं रहा। यार ये खान साहब, माइक म्यूट करिएगा, नमरोज खान साहब। अच्छा, बात ये है कि मैं तो नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके मुतल्लक ये समझता था कि आप कादियानी हैं। आज से पहले जितनी भी आपसे गुफ्तगू हुई उसमें आपके अंदर कादियानी जरासीम थे, और मैं आपको कादियानी समझता था। ये अलानिया तौर पे, मैं कोई ढका छुपा तो नहीं। तो मैं कह रहा हूं आज की डेट के अंदर, आज जनाब 24 दिसंबर 2025 है, तो आज की डेट के अंदर क्या मिर्जा कादियानी के ऊपर आप लानत करते हैं? ये मैं तो देखे जिसने भी नबूवत का झूठा दावा किया है नबी मेरे पाक के बाद, जिसकी तो बात नहीं मैं कर तो रहा, सिर्फ उसके ऊपर लानत करता एक हूँ। बंदे के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसका नहीं मैं पूछ रहा। मिर्जा कादियानी के ऊपर क्या आप लानत करते हैं? और मिर्ज़ा साहब की आप बात कर रहे हैं, इनका मुझे अभी थोड़ी सी ना कोई कुछ परसेंट कन्फ्यूजन है कि उन्होंने जहाँ जहाँ नबूवत का दावा किया है जितनी बार, उतनी बार इनकार भी किया है, इकरार किया, इनकार किया। अच्छा, अगर नहीं, उन्होंने नबूवत का दावा फकत किया है तो फिर उनके तो वो दावा उनकी नबूवत के ऊपर तो आप लानत नहीं ना करेंगे। मैंने तो नहीं कहा आपको कि दावा नबूवत के ऊपर लानत करें। ये देखे ना, अभी एक शख्स सहाबा की तौहीन कर रहा है, नबी की। अब आपने खुद तस्लीम किया कि वो बिल्कुल नबी की भी तौहीन करती है, तो जो सहाबा की या नबी की तौहीन करता है, कि लानत का मुस्तहिक है कि नहीं? जी शाह साहब, मैं इसमें थोड़ा एंटर करूंगा कि आप इनको मजबूर न करें कि ये लानत करें, लेकिन बहरहाल ये समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपके रास्ते पर ही आ जाएंगे। जो उन्होंने बात की है वो जी जिशान साहब अभी खामोश हूँ। वैसे भी तो लानत, सियालवी साहब, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा। लानत तो एक दुआ है, और ये देखिए मुफ्ती मुबशर कालू साहब क्या कहती हैं, जी सुनिए। नहीं, उनके नज़दीक दुआ ना, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक दुआ सुन तो ले नहीं जरा, है। मैं ऑडियो सुना रहा हूँ, सुन ले, पहले सुन ले। सर मैं फिर चला जाऊँ तो आप फिर आपस में बातें कर ले, क्या कहते हैं? ईशान साहब, एक मिनट जरा दे दें, एक बंदे से पहले बात कर लें। ये कोई तरीका नहीं होता कि एक को छोड़ के दूसरे की तरफ आ जाए। देखिए, आप रुके, थोड़ा सा इंतजार कर, आपसे पहले मैं मुझे था। ऑडियो सुनाने दे एक जरा।
निशान साहब ऑडियो फिर आप तो मेहरबानी बता देना प्लीज, फिर आप तो बता देना प्लीज। माइक म्यूट करिएगा, मैं जरा आ रहा हूँ आपकी तरफ, नहीं मेरे थोड़ा तो सा उधर इंतजार ही उधर रहे गटराने में। माइक तो म्यूट करिएगा, मेहरबानी करिएगा यार, कमाल करते हैं यार। मरतबा लानत भेजी और फिर इसी पे बस नहीं किया कि 1000 मरतबा, बल्कि 1000 मरतबा लानत का लफ्ज लिखा और कई सफ़े उससे भरे। तो ये एक एतराज जो है, इसका जवाब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि दें। लानत गाली नहीं है, लानत दुआ है। जब अल्लाह ताला किसी पे लानत करता है, लानत का मतलब है खुदा की कुर्बत, खुदा की मदद और खुदा की मोहब्बत फरिश्त। जी तो आबिद साहब, आप नहीं चाहते कि मिर्जा साहब खुदा की कुर्बत में चले जाएं, खुदा की मोहब्बत में चले जाएं, खुदा के करीब हो जाएं? तो लानत तो एक दुआ है, तो ये दुआ समझ के एक दफा, कम से कम एक दफा हुज्जत कायम करने के लिए आप मिर्जा जी के ऊपर मेरा ये एक दुआ बात कर तो दें, सुन एक लेना, लानत भेज दें। बात तो सुन लेना। मेरा ये ईमान, ये अकीदा, इस बात पे यकीन नहीं है कि लानत एक दुआ है। लानत फटकार है। लानत का मतलब है रहमत के अपोजिट है, रहमत के मुतजाद है लानत। ये चले लानत नीचे को बैठे हैं दुआ निशान के साहब, इनसे ही पूछ लेते हैं कि लानत लानत को दो। दुआ के ना, ये जाहिल बंदा ही कह सकता है, कोई आलम दीन नहीं कह सकता कि जो अच्छा, ये आप मुफ्ती मुबशर कालू साहब को जाहिल कह रहे हैं? हाँ, अगर उनकी आवाज़ है, मैं तो नहीं जानता उनको, तो ये जो कह रहे नहीं, थे ये कि तो लानत दुआ है, कादियानियों के ये जाहिल वो तरीन आदमी है है भाई, ये दीन का मुफ्ती, ये आलम नहीं हो सिलसिला है सकता। बहुत बड़े ये महान। कोई नहीं तो आप मुल्क- निशान साहब नीचे बैठे, इनसे पूछ लें। अच्छा, आप निशान साहब, ये लानत तो दुआ है, आबिद साहब आप इनसे पूछे, आप पूछे। ये लानत दुआ है या इसके क्या मानी है? हमारे नजदीक ये फटकार है, रहमत के अपोजिट है। जी, आप अल्लाह मुझे की बोलने फटकार दें, हो तुम पे। मुझे आप बोलने बताएं, दें। लानत क्या है आपके नजदीक? देखिए मुझे थोड़ा बोलने दें। देखें, ये लोग जिसको गुस्ताखी कह रहे हैं, अपनी तरफ से गुस्ताख बना रहे हैं, हालांकि इनके जो शिया भाई हैं वो तो ओ भाई, लानत बताओ ना, दुआ है या क्या है? आप एक तो इल्जाम दे बहुत मिर्जा साहब की तरह। मुझे सारी देखो, सारी जो गुफ्तगू है भाईजान, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। लानत आपके यहाँ नजदीक दुआ है या क्या है? इसका क्या मानी है? अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है ना, कि मदद या अल्लाह इन पर लानत भेज। अब अल्लाह ताला से हम जो भी मांग रहे हैं वो दुआ है। फटकार पर अपना गजब नाजिल कर, इसका ये मानी होता है ना? तो आपके यहाँ क्या? अल्लाह ताला की झूठों पर लानत हो, ये भी हम दुआ करते हैं। तो अब अल्लाह ताला से हमारा, जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है, मदद मांगता है और अल्फाज इस्तेमाल करता है कि या अल्लाह झूठों पर लानत भेज, या अल्लाह इन पर लानत भेज, वो बंदा तो दुआ कर रहा है। अब अल्लाह ताला अगर करता है तो ये तो अल्लाह ताला उसको कुर्बत दे रहा है, उसकी दुआ को कबूल करके। आपके नजदीक क्या है क्या नहीं है, वो जो दुआ कर नहीं रहा, वो बदुआ कर रहा है उनके लिए कि इन पर लानत हो, इनका बेड़ा गर्क हो। देखो, वो दुआ कर रहा है। अल्लाह ताला की ज़रूर इंसान जो है गुजारिश कर सकता है, मदद के लिए पुकार सकता है अपने खुदा को, जो ये सारे काम करने पर कादर है। तो अल्लाह ताला ने जो खुद कुरान में कहा है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। तो ये अल्लाह उनके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में है वो, देखो अल्लाह ताला झूठों पर लानत करता है ना, इसलिए जो झूठा होगा तो उस पर लानत होगी। सच्चे की अल्लाह ताला तायीद करेगा, उसकी दुआ कबूल कर लेगा, उसकी पुकार कबूल करेगा, उसकी जो भी दिल में उसकी दिल आजारी हुई है उस पर मरहम रखेगा। ये तो अल्लाह ताला का अमल है। मुफ्ती मुबशर साहब, आपने आज कमाल कर दिया, एक नई बात। देखी जाओ जरा, पेड़ पे आ गया जरा। म्यूट रखें, बाकी सारे दोस्त म्यूट रखें। अब मुझे एक थोड़ा बात करने दे। देखे, मिर्जा साहब ने जो भी कहा है, जैसे भी कहा है ना, मौलवी साहब की हाशिया राई या बुख्तानबाजी इजाफे, वो मौलवी साहब के अपने हैं ना। मिर्जा साहब ने जो भी कहा है, जैसे भी कहा है, बस वही हक है, क्योंकि वो नबीउल्लाह है और नबी का ये मुकाम है कि वो सब की अदालत लगा सकता है। मौलवी मुबशर की भी। भाई, आप मिर्जा साहब को नबी मान के अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हो। बात सुन लो, मिर्जा साहब ने कहा ये दुआ है, तो आप उसको जबरदस्ती दुआ मान रहे हैं। आपको भी पता ये दुआ नहीं है। सुन तो ले। अब अगर बंदा कोई कहता है कि नबी ने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, ऐसे क्या वैसे क्या, भाई ये हक नहीं है। और जो ये काम करता है, अच्छा, ये जिशान साहब जरा थोड़ा सा रुकेंगे आप? थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। मैं बड़ी पहले माजरा चाहता हूँ कि आपको मैं वो क्या इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्ट, तो वो इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो वो उसकी मैं थोड़ी सी माजरा चाहता। अच्छा, ये आबिद भाई, आपने अब जिशान भाई को ये वाला हवाला देना है कि ये रूहानी खजान जिल्द 8
यहाँ देखिए मौलवियों को लिख लिख के 1000 लानते दी है। लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, 1000 लानते। ये देखें सफा नंबर 159, 160, 161, 162 तक ये लानते खत्म होती हैं। तो ये जरा इनको जरा करिएगा जी। जी निशान साहब, ये जो मिर्ज़ा साहब ने मौलवियों के ऊपर लानत भेजी हुई है 1000 बार, तो क्या ये मिर्ज़ा साहब मौलवियों के हक में दुआ कर रहे थे? मिर्ज़ा साहब के मैंने खुद अल्फाज सुने हैं मौलवियों के बारे में, ख़ासकर क्या नाम है वो हुसैन जो थे बटालवी साहब और मौलाना अमृतसरी साहब थे, उनके बारे में कहते हैं ये कुत्ता है, ये गूंखोर है। उन मिर्ज़ा साहब की किताबों में लिखा है। तो क्या ये लानत करके उनके ऊपर मिर्ज़ा साहब दुआ कर रहे थे? इस पे थोड़ी रोशनी और डालिए। इसी के एक सफा पीछे आबिद भाई ये मौलवियों के उन्होंने नाम भी लिखे हैं कि मौलवी करमदीन, मौलवी निजामुद्दीन, मौलवी लाही बख्श, मौलवी हमीदुद्दीन खान, मौलवी नूरुद्दीन, मौलवी सैयद अली, मौलवी अब्दुल्ला बेग, मौलवी हसामुद्दीन बम्बई, मौलवी हसामुद्दीन, मौलवी निजामुद्दीन, मौलवी काजी सफदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान, मौलवी हसन अली वगैरह वगैरह। तो ये मौलवियों को ये दुआएं दे रही। अच्छा ज़ीशान साहब, ये जो अभी मुफ्ती साहब ने मौलवियों के नाम लिए हैं 12-13, तो क्या मिर्ज़ा साहब ने इन तमाम मौलवियों के ऊपर लानत भेज कर 1000 बार क्या उनके हक में दुआ की है या बददुआ की है? ये बता दें आप। देखिए, मैंने आपको जो पहले अर्ज किया था, आपने अगर वो समझ लिया ठीक है, मैं तो वही कहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी मिर्ज़ा साहब ने कहा है, जैसे भी कहा है, बस वो हक है, उस पर कोई बंदा सवाल नहीं। अच्छा इसको लॉक कर दें जरा, इधर लॉक करें आबिद भाई जरा, इसको लॉक कर दें कि जो भी मिर्जा साहब ने फरमाया है वो हक फरमाया है, ठीक है ना? लॉक कर देते हैं, ऐसे क्या ना? चलें जी। मिर्जा साहब ने फरमाया है कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहते हैं किरमे खाकी हूँ, मैं गंडोया हूँ। वो कहते हैं कि ना आदमजाद हूँ, मैं बंदे दा पुत्र कोई नहीं हूँ, बशर की जाए नफरत, यानी इंसान की जो शर्मगाह होती है वो मैं हूँ। तो फिर तो मिर्जा साहब ने हक फरमाया है जी। जिशान साहब जी मौलवी साहब, ये जो आशिया याद, अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये भी इब्राहीम अहमदिया के अंदर ही है जो मिर्जा साहब कहते हैं मुझे खुदाए जल्लाश ने ये इल्हाम की है जी। मौलवी साहब सुन लेना, देखें ये जो आपकी हाशिया राई है, ये तो आपके नफ्स की हाशिया राई मैंने नहीं की अभी तक। मायने जो आप बयान कर रहे हो, ये गंडोए शिंडोए, ये तो आप बयान कर रहे हो, ये तो आपके नहीं, आप माना नहीं, आप सुन लेना, सुन ले। किसको कहते हैं? गूगल पे जाके सर्च करके देख लें, सुन लेना। गूगल के मोहम्मद ना आदमजाद हूँ का क्या मतलब होता है? मैं बंदे दा पुत्र नहीं। चल तू अपना टेढ़ हाली कर ले एक बार। हूँ बशर की जाए नफरत का मतलब इंसान की शर्मगाह नहीं तो और क्या है? बता दें, आप बता दें। अगर मैं गलती पर हूँ, मुझे नहीं समझ आई तो आप समझा दें। जब आपका टेढ़ हाली हो गया, आपका नफस आपको कहेगा कि ठीक है चुप कर जा, तो फिर ठीक बता देना। चले जी, अब आपका टाइम शुरू होता है निशान साहब। हो गया टेढ़ हाली हो गया ਤੁਹਾਡਾ? नहीं कुछ बताएं अब, मैं तो चुप हो गया हूँ। मैं तो आपके मलफूजात सुनना चाह रहा हूँ जनाब। बोलिए ना, टाइम जाया ना। बात नहीं करेंगे, ये ऐसे भागते हैं। अब इनके भागने का टाइम हो गया। वो लाख जो बात हुई है उधर ही लाख रहेगी कि मिर्जा साहब ने जो फरमाया हक फरमाया, बात वो ही रहेगी, बात इधर उधर नहीं अब जाएगी। भागने का टाइम शुरू हुआ जाता है। साहब बहुत बड़ी बात हो रही है, प्लीज म्यूट रखें, बहुत बड़ी बात हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही। जिशान साहब इसी बात को जरा आप करें, इसको एक बात मुझे भी करने दो यार मुफ्ती साहब। टेढ़ हाली हो गया आबिद भाई, बात ये बात बिखर जानी है। मैंने जो बात लाख की है वो नाराज नहीं होना। मिर्ज़ा साहब की किताब के हवाले से पढ़ रहा हूँ और आपके कौल के मुताबिक आपने कहा मिर्ज़ा साहब ने जो भी कहा सच फरमाया। तो मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं अपनी किताब में, मुझसे नाराज़ नहीं होना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनका हवाला कोट करूँगा उनकी किताब से। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो मेरी बीवी है इसके मरीदों के साथ मरासम थे नजायज़। क्या ये मिर्ज़ा साहब ने सच फरमाया है? ये बात कहीं और चल जा रही है, थोड़ा सा रुक जाए आबिद भाई, एक मिनट। ये भी करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं जी। आप ऐसा करो, दिशान साहब आप अपना पेट हल्का कर लो, जब पेट हल्का हो जाएगा बोलोगे कि आप ठीक, हमने नहीं बोलना, तो फिर जी चुप हो गए हम। एलो जी है मुंह बंद कर लो। टेढ़ हाली हो गया, टेढ़ हाली है जी। शान साहब आपको क्यों बार बार वो कह रहे हैं, फिर आप वही बकवास कर रहे हैं, ढिड खाली है ढिड खाली, क्या तमाशा बनाया हुआ है?
बात करें आगे। सुन तो लैन दो मुफ्ती साहब, टेठाली हो गया तुम्हारा जी मुफ्ती साहब। यार रिशान साहब फिर मैं आपको बात करूंगा ना, फिर आपको मिर्चियां मैंने लगेंगी। पूछा था मैं आप मसीह बताना मौत है, तो नहीं हूँ, मेरा पेट खाली हो जाए, मुझे टट्टियां लग जाएं, आपका 100 पेट दफा टट्टियां करें और फिर पेट इसलिए खाली मैं हो, कह रहा था कि आप ये ना अपना करें। मैं इतना मसीह मौत नहीं हूँ, इतना तो बिगाड़ते हैं, बात बाहर करिए, निकाल आप के जवाब रखा, दीजिए। जब आप आराम से आप बैठ हर जाएंगे बंदे को तो मसीह बैठ मौत ना सकते ना हैं। समझ लिया करें, हर बंदे तो मसीह मौत नहीं ना, पेट उदा खाली हो जाए टट्टियां कर करके, इंज ना करो। मेरे सवाल का जवाब दे जी। पेट खाली हो गया ਹੁਣ नहीं मैं टट्टी ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕਰੋ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਟੱਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰਾ। नहीं पेट मेरा, मैंने आपके सामने कैमरा ऑन करके, आपका तो कैमरा भी बंद है, मुफ्ती मेरा कौन सा साहब, पेट खाली हुआ है? मुफ्ती क्या साहब कर आप रहे हैं चुप आप? करके बात जरा करिए, 2 बात मिनट का जवाब आप बैठे दीजिए। रहें, ये फिर बोलेगा, नहीं यार तो सुहेल साहब भागेगा। मेहरबानी करें, थोड़ा सा हमें टाइम दे दें मेहरबानी, या तो आप मुकालमा कर ले सुहेल साहब, हम चले जाते हैं, कर ले आप आपका बात। पेट मुफ्ती साहब आपका पेट खाली नहीं हो रहा, पहले हाली निशान साहब जवाब दीजिए। आपने कहा मिर्जा कादियानी ने जो कहा है हक का है। मिर्जा कादियानी कहता है किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की। बताइए क्या मिर्जा ने ये हक फरमाया है कि ना हक फरमाया है? ਤੁਹਾਡਾ पेट खाली हो गया फिर यार वेल लो यार, ऐ जे कादियानी आराम ਨਾਲ ऐ ਬੈਠ मेरी जे कादियानी। ਇਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਤਸਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਥਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ये इस बात का सबूत है कि उस्ताद मोहतरम ने जो तीर मारा है वो सही निशाने पे लगा है। हाडा सावन की घटा अल्लाह हाडा सावन की घटा वाह। बदतमीजी पे उतराया है, ये बदतमीजी के साथ तेरा बात पेट खाली हो गया कि और कुछ अंदर है जो बाहर करने वाला। बोले जा रहे हैं इस ब्राड के ऊपर इस बदतमीजी तरीके से बोलने को आपको इजाजत नहीं है, लिहाजा इंसानों की तरह अगर आपने बहस करनी है, अगर आपने अपने अंदर का जो भी तो तमीज के जी दायरे के एम अंदर आई अपनी खान बात साहब करें। खामोश हूँ, कोई बात साथी सुने और न भाई, बोले, माइक बात म्यूट सुने भाई। रखें। बात सुने भाई, अभी मेरी जाती ब्राड का टाइम शुरू हो गया है, जो मैं 8 बजे करता हूँ, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, लेकिन मैं अभी इसी ब्राड के ऊपर इसी को कंटिन्यू करूंगा, बात समझ लीजिए। जबरदस्त। और मेरी अपनी ब्राड का जो मजाज है वही मजाज मैं इधर भी करूंगा, याद रखिएगा सारे जितने सुन रहे हैं। सिर्फ 2 बंदे इधर रहेंगे, बकाया सब नीचे जाएंगे। मैं इस तरह की ब्राडें नहीं करता कि ऐसे मुफ्ते में सारे बिठा के रखूं। सिर्फ एक बंदे को मैं कॉल पे उठाता हूं और उससे बात होती है, वो जब नीचे जाता है फिर अगले बंदे को उठाता हूं। तो जल्दी जल्दी अब 8 बज गए हैं ते आप विराट में कितने बंदे होते हैं टोटल, कितने बंदे होते हैं? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆबिद भाई ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਮਾਜ਼ਰਤ। ਜਮਰੋਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਹਬੀਬ भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਵੋ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। जी जिशान साहब बताइए। इससे पहले दसना थोड़ा पेट खाली हो गया? जी हाँ जी पक्की गल बिल्कुल, बोलोगे नहीं? जी करो जवाब दियो। दसो ना पेट खाली हो गया ਤੁਹਾਡਾ? हो गया कितनी बारी सुनना जे कह दिया हो गया। ਤੁਸੀਂ पेट खाली क्यों किते की वजह से अंदर क्यों डकिया हाजिर ने? यार मेरा दिल कर रहा सी कि मसीह मौद दा भी कोई सुन्नत अदा कर लीजिए, 100 दफा टट्टी मूत्र कर लीजिए ते वो पेट खाली 100 दफा टट्टी करके ही तो खाली ਹੁੰਦਾ है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ मुझे ਕਾਗਜ਼ਾत जवाब दीजिए। आपने फरमाया है कि मिर्जा कादियानी ने जो कहा है हक फरमाया है। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे वही नाजल हुई है, ये लाश की तरफ से, काले कालू की तरफ से, कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ, मैं एक गंडोया हूँ, मैं बंदे दा पुत्र कोई नहीं हूँ, बशर की जाए नफरत, मैं तो लाम नून हूँ, इंसान की शर्मगाह हूँ। इसका जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब देखो तेरा पेट जब खाली नहीं आप तस्लीम करते हैं कि मिर्जे ने हक फरमाया है, मिर्जा कादियानी एक गंडोया है, मिर्जा कादियानी बंदे दा पुत्र कोई नहीं, मिर्जा कादियानी लाम नून है, आप यकीन करते हैं? बताइए। आपने ही फरमाया है कि मिर्जे कादियानी ने जो कहा हक का है, दे जवाब। देखो जिस टाइम काफर ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ इसका जवाब दे। काफर कुफर नहीं, काफर कुफर नहीं। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे वही नाज़िल हुई है। आपने कहा जो मिर्जे ने कहा है
बिल्कुल हक फरमाया है। या तो आप कहें मिर्जे ने ये नहीं कहा, खाली नहीं है, तेरा पेट खाली नहीं है, कर लो। बताएं इसका जवाब दे, जवाब दे। कितना टाइम चाहिए आपको? मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, बताएं कितना टाइम चाहिए? टाइम कितना चाहिए आपको? लेकिन फिर बाहर निकल कितना टाइम चाहिए आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बताएं। जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, टाइम शुरू कर देता हूँ, फिर मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। सब ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ बताएं, मैं कह रहा हूँ टाइम बताएं कितना चाहिए आपको जवाब देने के लिए। सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ मैं ਰਿਹਾ। माइक अपना म्यूट करने लगा हूँ, आपका टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट चलें। जी देखो, अगर ते किसी बंदे ने गलत अल्फाज इस्तेमाल कीते मामूर मिन अल्लाह दे खिलाफ ते उन जवाब हो ये ਜਿਹੜਾ हज़रत ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ हज़रत ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਮਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ हज़रत ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਮਮ ਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਬਾਸ ਬਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। दूसरी गल है वे मामूर में नाला हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम ने जो भी फरमाया है, जैसे भी फरमाया है, वो बस वही हक है, और तो कोई बंदा सवाल नहीं कर सकता। जी जिशान साहब, अब आप चाहते हैं कि आपको उतार दिया जाए, आप गलत बात कर रहे हैं। मिर्जा कादियानी पर यहाँ दरूद और सलाम नहीं पढ़ सकते। जाली साहब एक मिनट आज ਤੁਸੀਂ उन्होंने टाइम लगाया ना, तुसी चुप कर सुनो। तुसी पहला तो मैं गाल की थी, तुसी बोले ना नहीं। पहले तो आप अभी ठीक बोलते रहे, लेकिन अब आप भागने के लिए ये बहाना तलाश कर रहे हैं। वैसे कहें आपको उतार देंगे कि मुझे उतार दें, मेरे पास जवाब नहीं है। अब आप ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। यार साहब देखो, अगर मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ना, वो अल्लाह ताला के मामूर हैं। इसी तरह मिर्ज़ा साहब जो है वो भी मामूर में अल्लाह हैं। अब जो उनका मुकाम मर्तबा है, जो उनकी बिग अचीवमेंट है, तो उन्होंने तो ये जीती हुई है अलैहिस्सलाम, ये तो उन्होंने गिवन किया, उन्होंने जीता हुआ है, इसलिए ये तो फर्ज है ना। अब अगर आपको लगता है कि मिर्ज़ा साहब ने फलानी बात की है और आपको लगता है कि वो गलत है, वो आपको गलत लग रही है, क्योंकि आपका नफ्स गलत है, आपका कीदा गलत है, और उसी की इस्लाह के लिए तो मामूर में अल्लाह आया है। मिर्ज़ा साहब ने, आपको मैं ये कहूँगा, मिर्ज़ा साहब ने जो भी कहा है, जैसे भी कहा है, आप सब के फ़िरक़ों की इस्लाह करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत होकर कहा है। इसलिए जब तक आप लोग मिर्ज़ा साहब की बात नहीं मानेंगे, उनके फैसले नहीं मानेंगे, आप लोगों के इख्तिलाफ़ात हल हो ही नहीं सकते। आपका मनहज वही रहेगा जो बाकी मुनकरीन का है, जो अंबिया की गुस्ताखी करते रहते हैं, उनके खिलाफ बदज़बानी करते रहते हैं, तो आप वही करते रहोगे। आज भी आप वही कर रहे हो। जी शाह साहब, आपका माइक म्यूट है। शाह साहब, आपका माइक म्यूट है। मैं कह रहा हूँ कि आपको बोलने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2.25 मिनट हो गए हैं आपके। मुझे 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट टोटल चाहिए। हाँ, तकरीर करनी है। आपने ये पूछा मिर्जा तो मैंने कहा कादियानी, ना। ये जो अभी पहले ऐसा कर ले, पहले जो अभी आपने चीजें बयान की हैं उसका मुझे जवाब दे लेने दें, फिर आगे बात कर लीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट भाई रुक जाए, मुझे भी अब 2.25 मिनट चाहिए। जितना टाइम आप लेंगे उतना ही टाइम मुझे चाहिए होगा, ऐसे नहीं। इंसाफ ना भाई, इंसाफ चलेगा, इंसाफ। मैं ये चला रहा हूँ, 1 मिनट है, मुझे भी इतना ही टाइम चाहिए। 1 मिनट रुक जाए जरा, ये मैं स्टॉप वॉच लगा लूंगा अपना टाइम। ये अच्छा जी, आपने अभी कहा कि तुम भौंक रहे हो अब, ठीक है? अब चुप करके इनका शालिम साहब जरा माइक म्यूट करते रहिएगा, इन्होंने मुझे बोलने नहीं देना। मैं इतना बोलूंगा अब ना, इंसाफ। इन्होंने बोलने नहीं मुझे देना, माइक इनका म्यूट करिए। आपने कहा कि तुम भौंकते हो, मैं मसीह मौद नहीं हूँ, मैं मसीह मौद नहीं हूँ, मैं मसीह मौद नहीं हूँ, मैं भौंकता नहीं हूँ, मैं मसीह मौद नहीं। इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है मैंने। सुने,
मिर्जा कादियानी कुत्ती दा बच्चा, मिर्जा कादियानी कुत्ती दा बच्चा। मैंने किताबों, तुम्हारी किताबों में साबित किया है। मिर्जा कादियानी कहता है मैं कुत्ती दा बच्चा हूं और कुत्ते का बच्चा हूं। और मिर्जा कादियानी कहता है ये ले जादू वो जो सर चढ़ के बोले। सुने ये अगला हवाला, रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफा 334 के ऊपर मिर्जा कादियानी पूरा सफा लगा दिया मैंने। देखें, कहता है अगर वो मुझ पर राजी नहीं और मैं इसकी निगाह में बुरा हूं तो फिर कुत्ते की तरह क्या 1000 दर्जे कादियान की गली के कुत्तों से बदतरीन कुत्ता हूं। भोंगता कौन है? औ औ औ औ औ औ मिर्जे ने लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है ये औ औ करना कुत्ते का काम है, ये कादियान के कुत्ते का काम है। आप हर बंदे को कादियान का कुत्ता समझ लेती है, मसीह मऊ समझ लेती है, भागे हैं, बस हो गई। ये औकात है, बातें करते हैं, बातें करते हैं, लंगोटे चुक के नसंदी कर दे हो। वो अपने आप को तुम लै सलाम कह रहे हो, वो अपने कुत्ती दा बच्चा कह रहा है। तुम क्यों नहीं कहते मिर्जे को कुत्ती दा बच्चा? लै सलाम, उसने तो नहीं लै सलाम अपने आप के लिए, उसने एक दफा भी कहा कि मैं लै सलाम हूं। वो तो कहता है अपने लिए, कहता है मैं कुत्ती दा बच्चा हूं। कहो ना तुम मिर्जे को कुत्ती दा बच्चा, लै सलाम। ओदा मुंह है वे लै सलाम वाला, वो कुत्ता कादियान दा कुत्ता, सब तो बड़ा कुत्ता, लै सलाम। हाँ जी, चले मैं अब कॉलर उठाने लगा हूं भाई, मैं खुद मॉडरेटर हूं, मॉडरेट कर लूंगा। अभी कॉलर कोई नहीं, अभी अपने बंदे नीचे बैठेंगे भाई, अपने बंदे नीचे। कॉल पाओ एक कादियानियों, कॉल पाओ, जल्दी करो। ये मेरी कल नई किताब आई है, इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। मिर्जा कादियानी चोर, मिर्जा कादियानी चोर, योए चोर। और पता है कितना बड़ा चोर था? मैं अपनी हर किताब के अंदर कर रहा हूं कि पूरा स्कैन, कादियानी किताबों का पूरा स्कैन, 12 हवाले लगाए हैं, 12 हवाले असल किताबों के स्कैन पूरे ला देते। जो कादियानी कहते थे 2 लाइनें आगे से पढ़ो 2 पीछे से, मैं कहा पूरा सफा ही लवो, पूरा सफा ही चुको। मिर्जे को चोर साबित किया, चोर कादियानी किताबों से साबित किया है, अपनी तरफ से नहीं। और चोर भी कितना बड़ा, सारी जमा तकसीम तफरीक में की जे, मेरी किताब च पढ़ लिया जे। देखो जनाब, 3 करोड़ 36 लाख का चोर, मिर्जा कादियानी चोर, कादियान का चोर, मसीह चोर, जैली मसीह चोर। हाँ करो गल। जो कहा है हक कहा है, सच कहा है, तो मनो ना जो उन्हें लिखे है, मनते तो है कोई नहीं। वो कहते मैं चोर, तुसी नहीं मनते। और ऊपर से मिर्जे कादियानी ने कहा है, अभी ये मेरी किताब ज़ेरे तरतीब है, उसके अंदर ये मैं सारे हवाले लेके आऊंगा। मिर्जा कादियानी कहता है जो मेरी किताबों को नहीं मानता, कहता है वो रड्डी दा बच्चा है, ओ गश्ती दा पुत्र जे जड़ियां मेरियां किताबां नहीं मनदा, ओ मेरियां गल्लां नहीं मनदा, गश्ती दा पुत्र है और रंडी दा बच्चा है। ओ कादियानियों मर जाओ, पटारी खोलना जरा, एक मिनट ठहर जाओ। वैसे तो इसके ऊपर पूरी किताब मैं लिख रहा हूँ, वन करीब इंशाल्लाह ताला वो भी तरतीब पा जाएगी। ये लो, चौंदा एक हवाला ते लवो ना, अगलियां गल्लां बाद चु करांगे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफा 547 और 548। वो कहता है मेरी किताबों को सारे मुसलमान बड़ी मोहब्बत और मुवद्दत की निकाह से देखते हैं और इनसे नफा उठाते हैं। भाई नफा तो वो ही उठाएगा जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं नफा कैसे उठाएगा? कहते सारे मुसलमान नफे उठाते हैं इससे, ते जेड़ा मेरिया किताबां नूं कबूल को नहीं करदा ते नफा को नहीं उठांदा, वो कौन है?
इल्ला जुरियातुल बगाया, रंडी दा पुत्र, गश्ती दा बच्चा, रक्कासा दा बच्चा, नच्चन वाली दा पुत्र, कोठे वाली दा पुत्र मेरी किताबां नूं नहीं मनदा ना। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਇੱਧਰ आओ, ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਇੱਧਰ आओ, नेड़े आओ, नेड़े लगो। ये देखो अनवारुल उलूम है, जिल्द 5 है, सफा 560 है, और ये 2 नंबर तुम्हारा जो खलीफा है जानी, जानी इब्ने जानी बशीरुद्दीन महमूद, जिसके ऊपर मैंने पूरा रिसाला लिख दिया हुआ है, जानी इब्ने जानी। ये लो चुको दलील। अच्छा जी, वो लिखता है कि जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों जिस पर फरिश्ते नाज़िल होते थे। क्या नाज़िल होते थे? फरिश्ते। और उनके पढ़ने से भी मलाइका नाज़िल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें जो शख्स पढ़ेगा उस पर फरिश्ते नाज़िल होंगे। ये एक खास नुक्ता है, क्योंकि हजरत साहब की किताबें पढ़ते हुए नकात और मुआरफ खुलते हैं, और जब पढ़ो जब ही खास नकात और बरक़ात का नज़ूल होता है। बराहीन अहमदिया खास फिजान लाही के मातहत लिखी गई है। इसके मुतल्लक मैंने देखा है कि जब कभी मैं इसको लेकर पढ़ने के लिए बैठा हूँ 10 सफ़े भी नहीं पढ़ सका, क्योंकि इस कदर नई नई बातें और मार्फत के नुक्ते खुलने शुरू हो जाते हैं कि दिमाग इन्हीं में मशगूल हो जाता है। कादियानियों, तुसी नहीं चाहते इब्राहीम अहमदिया पढ़ो, जिसके अंदर लिखा है कि किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, न आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। तुसी नहीं चाहते कि तुहाडे ते फरिश्ते नाज़िल होन ते साडे ते भी फरिश्ते नाज़िल होन। है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਬਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ, ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ ਭਾਈ, ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। हाँ, वाला मैं उन्हें काट देना, वाला मैं उन्हें काट देना। वो कहने नाल गल करनी है। ठीक है मैं 1 मिनट काट के ले आया, 1 मिनट दियो। बात जो भी करें दलील से करनी है, और ये असूल है हमारा। बात हम अपनी तरफ से कोई नहीं करते। हाँ, गाली भी अगर देंगे तो फिर दलील से ही देंगे। बात जड़ी भी करनी दलील नाल ही करनी है। जब मिर्जे कादियानी कुत्ती दा पुत्र भी कहना ना, तो उसदी किताब चो कट के वहाना है। अभी ये हमारी ब्राड 5 जगह के ऊपर चल रही है, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। क्योंकि रोजाना रात को 8 बजे से 9 बजे तक की मैं ब्राड करता हूँ, तो मैं सियालवी साहब की ब्राड पे अभी बैठा हूँ, तो चलो मैंने कहा इधर ही तबरकुन, इधर ही काम शुरू कर देते हैं। हाँ फैसल भाई उतनी देर हवाला लेके आते हैं। हबीब साहब अगला बंदा चुको, कोई आया जे कलर? जी हजूर, मैं इतने मोडिनेटर नहीं आया। अच्छा चलो मैं दे। जमरोद खान साहब बैठे ने, कोई सवाल करके फिर खान साहब नीचे चले जाना है। ब्राड का उसूल ये है कि बात करके नीचे जाना है, बैठना नहीं है, फारग नहीं बैठना। सियालवी साहब चूंकि पीछे गए हुए हैं, तो मैं अब बंदे नहीं उठा सकता, क्योंकि जो होस्ट होता है वो बैक पे चला जाए तो हम अपनी वर्किंग नहीं कर सकते। हाँ भाई कॉलर पाओ भाई, कॉलर आओ भाई। कादियानियों कितने टुर गए हो? तबलीग जारी है, तबलीग जारी है भाई, तबलीग करो भाई, तबलीग करो। मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। मिर्जा कादियानी चोर साबित हो गया, मिर्जा कादियानी चोर ही होए साबित हो गए।
ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਕਾਦੀਆਨੀ 3 ਚੋਰ ਹੀ ਕਰੋੜ ਹੋਏ, ਤੇ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਏ, 3 ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰੋੜ ਚੋਰ ਹੀ 36 ਲੱਖ ਹੋਏ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਰ। ਚਲੋ ਦੁਬਾ- ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਓ ਚਲੋ 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 ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੈਠੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰਾੜ ਤੇ आओ। ओए नजीर मिर्जा की जो चोर ही टूटिया होए, क्यों? नवी किताब भी आ रही है मिर्जा जेब कुतरा, वो बाद में वो वाह अगली वाह वाह। अगे लिखांगे। मिर्जा जेब कुतरा अजय ते मिर्जा चोर ही होए। आ जाओ भाई आ जाओ कादियानियों, मुफ्त किताबां तुहाडे आस्ते कादियानियों, जिन्नू जिन्नू चाहिदियां हुण मेरियां सारियां किताबां मुफ्तो मुफ्त। हार्ड कापी चाहिदी है, PDF चाहिदी है, मुफ्तो मुफ्त। लुट्टां पै गईयां भाई, लुट्टां पै गईयां कादियानियों। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋ ਨਾ ਪੜੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੇਜਾਂ ਹੀ ਭੇਜਾਂ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ भाई ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, मिर्जा चोर साबित हो गया। हजरत मसीह मऊ साहब की जय हो, झंडे लगे रहे। मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारे तक पहुंचाया, उते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਬਾਂਦਰ ਸੁਵਰ ਖੰਦੀਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਰਾ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਮੌਲਵੀ ਬਾਂਦਰ ਸੁਵਰ ਖੰਦੀਰ। ਮੁਸਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, YouTube ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਮਨ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਟੁਰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਕਾਲ ਆਈ ਭਾਈ, ਕਾਲ ਆਈ। ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ जी। हीरो साहब बात करिए हीरो साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी जनाब बात करिए मोहतरम, माइक जी म्यूट हजरत कर दिया साहब, आपने। नहीं हजरत साहब मैं सिर्फ बातें आपके सुनने आया हूँ सर जी। अरे नीचे बैठ के सुन लेना, वो तो जरूरी जी काल जी, ही डालें आप। पता नहीं नीचे काल बैठ के कैसे सुन चल लें, गई। चलो जी 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 जी। बड़ी मेहरबानी। नीचे बैठ के टैप टैप भी करें, निरी सुननी नहीं है फिर नाल जी टैप सर टैप भी जी करना थले बैठ। ओके सर, ओके सर कोई जी, सवाल ओके नहीं है तो कोई बात। अच्छा भाई काल करो भाई, काल करो जल्दी जल्दी। दुकान खुल गई भाई, दुकान खुल गई है भाई। आ जाओ भाई आ जाओ। कादियानियों मर जाओ, टुट पैने हो, फिड़की पैने हो। लो जी सिर फड़ के बह गई है यार। 270 बीमारियां मैं इस किताब से जमा कीतियां ने मिर्जे दी, 270 बीमारियां। अच्छा बीमारी है ना, अगर ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉੜਦੀ 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 ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਜ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਾਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਮੁੰਡਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਓ ਚਲੋ ਕਰੋ ਬਈ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੋਈ ਏਡਜ਼, ਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ। ਮਰਾਕ ਪਾਗਲਪਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ 2 ਦਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਕਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ हैं जनाब YouTube पे। जी जनाब वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम।
मुफ्ती साहब, मैं अहमदिया का एक मुहक्किक हूँ, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, उसके बाद मैं बैक स्टेज चला जाऊंगा। नहीं नहीं, बैक स्टेज नहीं जाना आपने, इधर रुकेंगे, आप बात करेंगे, ये नहीं है तरीका कोई कि बात करके निकल जाऊंगा मैं। जी करिए बात, ये आपने खुद ही कहा था। बात आपने खुद ही कहा करें, था जब ना कि मैं सवाल करिए, समझूंगा कि इसलिए जाने का मौका आएगा फिर कर लेंगे। जी करिए बात। अच्छा, सवाल मेरा ये है मुफ्ती साहब कि मिर्जा कादियानी जब ये लाश से रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था, तो उसकी मक्कत में जो चमूने होते थे वो किधर जाते थे? मक्कत के चमूने किधर जाते थे? हो बड़ी कर दी है। वो असल में बशीरुद्दीन महमूद का एक ख्वाब है कि उसने एक ख्वाब देखा था कि मैं टट्टी करने गया हूँ, वहां जब मैं बैठा हूँ तो मेरी मोरी के अंदर ना खुरक हुई। कहने लगा मैंने ना खुरक अंदर उंगल डाली तो मैंने इंज तलाश कीता, चार चफल्ले मैं उंगल फेरी ते मैनू एक छोटा जिहा चमूना नजर आया कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਿਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ते वो आंदा है जी मैं ना वो उसको फिर ऐसे पकड़ के निकाला है और दीवार के साथ ऐसे लगा दिए। इधरों ने एक मौलवी साहब आ जाते ने, पता नहीं मौलवी अब्दुल करीम या इंज कोई नाम है, वो एक मौलवी आ जाता है ते आके उन्हें दरवाजा भी कोई नहीं खड़काया, लटरीन का दरवाजा खुला सी, वो सीधा ही अंदर आया है ते बूआ ना खड़का सोहणीए सीधा ही अंदर आ ते उन्हें आंदे ना जनाब वो चमूने नु ना लित्र मारने शुरू कर, लित्र लाया उन्हें, लित्रो लिथरी उन्हें कुटना शुरू कर ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮੂਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤੀ ਅਹਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਲੋਕ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। जी जनाब। तो इसका मतलब तो ये है ना मुफ्ती साहब कि जमात अहमदिया का ये लाश से भी डायरेक्ट ताल्लुक है ना? बहुत गहरा ताल्लुक है जी, ये हजरत मिर्जा साहब का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, बहुत गहरा ताल्लुक। और ये इसका जिक्र मैंने अपनी किताब मिर्जा चूड़ा के अंदर बड़ी तफसील के साथ किया है, और उसको पढ़िएगा, अभी छपने के लिए गई है, इंशाल्लाह छप के भी आ जाएगी चंद दिनों तक। तो चूंकि ये जखीम किताब है, 256 सफात की ये मुफ्ती किताब, साहब, इसके अंदर बड़ी तफसील से की है मैंने कि ये चूड़ मिर्जा कादियानी चूंकि चूड़ों का लीडर था, मुफ्ती साहब मैं तो चूड़े जो काम किया करते थे ना वो सारे औसाफ मिर्जा कादियानी में पाए जाते थे। वो जो इमाम दीन ने किताब लिखी थी दीदे हक, उसके मुफ्ती साहब अंदर बात यह है कि आवाज मुफ्ती साहब आप बोलिए, मैं चुप हूँ। हबीब साहब मेरी तरफ से आवाज कट रही है या ये मोहतरम की तरफ से आवाज कट रही है? मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा फिर ਇਹਦਾ मतलब मेरा नेट इथों कमजोर है। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, इधर टिकटॉक के ऊपर कोई कॉलर आया है? और कॉलर आए हैं, चलो इधर से लेते हैं। काशिफ भाई आए हैं। अस्सलाम हाँ वालेकुम काश रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मतलब ये जाहिर अहमद नीचे ना बकवास कर रहा है और इसने शातमियत की है नीचे, जाहिर अहमद ने। जाहिर अहमद जी ओए ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਓਏ ਜ਼ਹੀਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਪਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ नहीं तो ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ मैं बुला के ठोकन लगा हूं। जल्दी कर, कॉल कर अभी तुम्हें सिर्फ मैं म्यूट करने लगा हूं, अभी सिर्फ म्यूट करूंगा, अभी सिर्फ हाँ म्यूट, अभी ब्लॉक नहीं किया। कॉल कर, जल्दी कर, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। आमने सामने आके गल करन दी हिम्मत नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਚ है, टिप 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 टिप। अच्छा जी, एम जुनेस रजा साहब को मैं कॉल पे उठा रहा हूँ। सैयद साहब को उठा रहा हूँ। जी सैयद साहब। जी भाईजान बात करिए।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और मिर्ज़ा मसरूर अहमद, तो सॉरी नहीं कहना चाहिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और मिर्ज़ा मसरूर अहमद के मुंह पर लानत भेजती है। बिल्कुल ठीक है, दुआ दुआ जी हाँ, लानत ये दुआ बतौरे है, दुआ। जी दुआ। और ये जब आप ये मिर्ज़ा हीरा मंडी का दल्ला के नाम से जब आप रिसाला छापेंगे ना, तो उसका सारा खर्चा मैं आपको पेमेंट करूंगा। शाह जी माशाल्लाह। वो नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ। आप ਇੰਗਲਿਸ਼ बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ जी ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। जी बेहतर है, ਮਸੀਹ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖेंगे, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਏਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਛਾਪੇਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੇ WhatsApp ਤੇ, ਹੁਣੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਛੜੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਨਹੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਤੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ। ਸੇਫ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਲੈਂਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 200 ਬੰਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ, ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਬਲੀਗ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਅਸੀਂ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਨੇ ਆ ਕੌਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਬੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਦੇ ਜਾਨੀਓ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਬ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਹਵਾ ਟੈਟ ਹੋ ਗਈ। 2 ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਹਵਾ ਟੈਟ, ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਬੜੀ ਟਿਪ ਲਾਈ ਸਾਜੇ। आओ ना इधर मैदान च गल करो। और मिर्जे कादियानी ने सही किया सी, मैदान में निकलना है मुखनसों का काम नहीं। हिजड़े मैदान में नहीं आते। और हयाते अहमद है, हयाते अहमद में वो कहता है कि इन झूठों की ये निशानी है कि जब इनका गिरेबान पकड़ के कोई पूछे कि इधर जवाब दे के जाओ, तो वहीं घुस जाते हैं जहां से निकले हुए होते हैं, वहीं दाखिल हो जाते हैं जहां से निकले हुए होते हैं। अम्मी जी को जाके कहते हैं अम्मी जी गेट खोलो जरा, मैं जब वापस जाना है। जहां से निकले होते हैं वहीं दाखिल हो जाते हैं। और कादियानियों निकलो ये बाहर। ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਸਿੱਧੀ ਤੈਸੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। खातम का मतलब ये है तो हयात मसीह, तो वफात मसीह, तो जराए नबूवत, तो वो आयत का मतलब ये, तो मतलब ये, तो मतलब ये, तो मतलब ये, मतलब 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 हाँ चंगा मतलब आज पाया कौम नूं। इधर आओ ना, साडे नाल गल करो। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ, ਤੋਰੋ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਭਾਈ, ਤੋਰੋ ਭਾਈ। जी मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, कादियानी चोर चोरी
कादियानी चोरी बचाओ अपना चोर है आओ जरा इधर सामने मिर्जा कादियानी कहता है कि किरमे खाकी हूं प्यारे ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर हूं लख दी लानत मिर्जा कादियानी दे बनन वालिओ आजो कॉल ते जरा आओ हवाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਹਬੀਬ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਏ ਜੇ जी हैदर शाह साहब चले गए हैं हैदर शाह साहब जनाब चले गए नीचे उतर गए ने जी हैदर शाह साहब ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਚੁੱਕੋ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕੋ शाह साहब दोबारा कॉल पाओ ਉਹ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ जी मैं चुप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ चुकना वहां थल्ले उतर जाते हैं ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਛੱਡੋ दोबारा चुक लो जी मामू हाँ जी भाई मिर्जा कादियानी दे मुफ्ती साहब कॉल चुक्या जे हुन मुदस्सर साहब दी कॉल चुको हैदर शाह साहब दी कॉल चुको जी हैदर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शाह साहब आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है जनाब फरमाएं वालेकुम अस्सलाम शाह साहब आज आप टिकटॉक पे लाइव नहीं आ रहे जी मैं लाइव टिकटॉक हूँ का अपने इंतजार कर मोहतरम रहे थे उस्ताद ग्रामी अलामा मुफ्ती मोहम्मद दिन सियाली साहब की बराड़ के ऊपर हूँ अच्छा 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 सही सही मैं वही इंतजार कर रहा था आज 8 बज के ऊपर हो गया लेकिन ब्रॉड नहीं लगी आप जी जी उधर मैं हूँ लाइव हूँ कोई बात करिए कोई ठीक हो गया शाह साहब बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी ठीक हो ए हबीब चलिए साहब चुको बस फिर ये पूछना था शाह चुक दियो लत्तां कादियानियां दियां चुक दियो आसरा ना करियो जी 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 नहीं मैं नहीं असला करदा जी मिर्जा कादियानी कहंदा है कि अपने आप नु कहंदा कि मेरा जेड़ा उर्दू में भाई हबीब साहब उर्दू में मैं जी मसीह हबीब हां साहब उर्दू में और अपने आप नु कहंदा कि मेरी अच्छा अच्छा मिर्जा कादियानी कहता कि मैं मसीह हूँ और दो चादरों का वो जिक्र भी करता है कि मिर्जा कादियानी कहता है दो चादरें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करते हुए कहता है कि दो चादरें जो आई हैं वो मेरे ऊपर उसका आया है वो मैं अभी आपको पेश कर देता हूँ तो कहता है कि दो जर्द चादरों से मुराद फरमाया कि देखो मेरी बीमारी की निस्बत भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई की थी जो इसी तरह वकू में आई आपने फरमाया था कि मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो दो जर्द चादरें इसने पहनी हुई होंगी तो इस तरह मुझको दो बीमारियां हैं एक ऊपर के धड़ की और एक नीचे के धड़ की यानी मराक और कसरत बोल मिर्जा का जी मलफूजात है मिर्जा कादियानी जिल्द दोम सफा नंबर 32 और सफा नंबर 23 वादा इसका है दावा इसका है मसीह मऊद का अब ये इसमें ज़ेरे गौर बात ये है समझने वाली बात ये है कि ये कहता है मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो इसके ऊपर कैसे इफेक्ट हो गया ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मुझे सिर्फ ये कादियानियों आकर बता दो कि ये आसमान से कब कहाँ किस जगह ये आसमान से उतरा है जबकि ये तो माई वो चिराग बीबी अलमरूक सिटी के बदन से पैदा हुआ है तो ये तो झूठा और कज़्ज़ाब अच्छा साबित हो गया कादियानियों आओ ना इसका जवाब दो आकर कि वो कादियानी मिर्जा कादियानी तो कज़्ज़ाब साबित हो गया है वो झूठा साबित हो गया है इस लिहाज से या तो फिर ये साबित करो ना आकर कि किस मीनारे पर कौन से जगह पर ये दमिश्क में कहाँ पर ये नज़ूल हुआ इसका नाज़िल हुआ और आसमान से उतरा वो कहता है कि मैं
नाजल हुआ हूं आसमान पर से, जब उतरेगा तो मैं उतरा हूं, तो मेरी ही ये चादरें इनके ऊपर ये है कि वो दो बीमारियां, इसने वो दो उस्ताद मुतल बीमारियां अपनी इसके ऊपर हबीब से साहब डाली जरा हैं। रुकियो भाई, कसरत बोल, हबीब कसरत साहब बोल का रुकियो मतलब भाई उस्ताद मुतल एक सवाल है, जी। ये कसरत बोल यानी जो ज्यादा बोलता है उसको कहते हैं? नहीं, बोल अरबी ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ, ਮੂਤਰ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਹਕਮ ਹੈਗਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ 28 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਲ ਹਕਮ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਨ 28 ਅਗਸਤ 1938, ਠੀਕ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 1938, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 2, ਸਫਾ 2, ਕਾਲਮ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੜੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੜੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ کہ مسیح قادیان نے فرمایا ہے کہ ہمیں شعر کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض دفعہ جب طبیب دیکھتا ہے کہ مریض کو منہ کی راہ سے اب دوا مفید نہیں تو پھر بیمار کے لیے حقنہ تجویز کرتا ہے اور اس ذریعے سے بیمار کی قبض دور ہو جاتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پس یہی یار حال سن دا صحیح بول، سن اچھا صحیح جی بول ٹھیک ہے، ذرا میں کر غور دوں۔ نال پڑھو۔ 1938 لکھا ہے کہ 1908 لکھا ہے؟ 1938 ਲਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਰਰੇ ਸਮੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੁਮਲਾ ਦੁਰਰੇ ਸਮੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਬਜ਼ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ کہ دیکھو بیمار کی قبض دور ہو ایک منٹ، جاتی بیمار کی قبض دور ہو دور جاتی ہے، ہو دور جاتی جاتی ہے، اگے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور وہ صحت یاب، اچھا بیمار تو پیچھے والا ایک جملہ لہایو، آپ بیمار تو پیچھے والا بھی لکھا دینا۔ ایک جملہ، ایک جملہ۔ جب طبیب دیکھتا ہے جب طبیب دیکھتا ہے کہ مریض کو منہ کی راہ سے اب دوا مفید نہیں ہوگی، اب دوا مفید نہیں ہوگی تو پھر بیمار کے لیے ہاں بس میں ہوں لب لاਂਗਾ انشاءاللہ۔ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ۔ ਇਹ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਫਰਹੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ WhatsApp। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਣੋ। ਕੀਮਤੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਆ ਹਵਾਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ہے کہ اس کے ذریعے سے بیمار کی قبض دور ہو جاتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سو بلے یہی حال ہمارے شعر و سخن کا ہے، اور تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ بعض طبع کے لیے مضامین شعر بنسبت مضامین نشتر کے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کہنا میرے بھی شعراں نال جڑی ہے نا ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ و ਸੁਖਨ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ و ਸੁਖਨ ਉਹਨੇ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਗਏ ਆ। ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਫਰਹੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਲਾ ਹਕਮ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਜੇ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ جی، اس ذریعے سے بیمار کی قبض دور ہو جاتی ہے اور وہ ਲੱਭ ਗਿਆ صحت ਲੱਭ یاب ਗਿਆ ہو ਹਵਾਲਾ جاتا ਲੱਭ ਗਿਆ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਢੇਰ ਆ ہے۔ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ یہی حال ہمارے شعر و سخن کا ہے۔ اچھا
ਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਕੀਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਹਕੀਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਵੇਖ ਲੋ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰ ਜਾਓ ਤਹਕੀਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਲਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅਲ ਹਕਮ 28 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅੱਛਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਆਏ 28 ਅਗਸਤ 7 ਸਤੰਬਰ ਸੌਰੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਪਿਆ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਿਆ ਹਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ 1938 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜੋ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਜੇ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ठीक है बड़ा कीमती वाला है यार ओए 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 धूड़ा पट वाला गल बड़ी कीती है फैसल हाँ भाई उमर निसार साहब आ गए ने माशाल्लाह उमर निसार साहब थोड़ी देर माइक कैमरा म्यूट करो कैमरा म्यूट उमर भाई कैमरा म्यूट करिए नहीं इंज नहीं हजूर अलैहिस्सलाम दे दरे अनवर दी जियारत एवें नहीं करानी बिल्कुल नहीं करानी हजूर दे दर दी जियारत एडी सस्ती नहीं कि जिदों मर्जी कैमरे आन करके असी लोकां नूं ना आओ देखो ना ताओ देखो ते जियारत ना 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 बिल्कुल बेअदबी है गुस्ताही है तौहीन है बल्कि तुहानूं मैं कहांगा कैमरा जेब विच बंद करो बंद करके जेब विच पा दो ए पूरे सफरे उमरा दे विच तुसां कैमरा मोबाइल तक नहीं यूज करना बहुत वड्डी बेअदबी यह काम नहीं करना ना भाई अपनी इबादत जाया ना करो तुसीं इस टाइम मर्ज़े मुकद्दस ते हो ते बिल्कुल नहीं अल्लाह सब नूं तौफीक दवे ते खुद जाके अपनी अखां दे नाल हजूर दे दरे अनवर दी ज़ियारत करन ਇਹ ज़ियारतां दा बिल्कुल मैं मुखालफ हाँ ਇਹ ज़ियारतां ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ करवांदे ने ਇਹ बेअदबी है तौहीन है और ना भाई ना उमर इंज नहीं करना ना मेरा पुत्र अपनी इबादत नूं ज़ाया नहीं करना बिल्कुल नहीं हाँ ठीक हो गया भाई ते 1 घंटे की बराड़ साडी मुकम्मल हो गई है 1 घंटा ते 5 मिनट की बराड़ हो गई है जी और 1 घंटे का असी ऐलान किया सी अलहमदुल्ला असी अपना पूरा कर लिया सियाली साहब मौजूद ने सियाली साहब हबीब साहब बराड़ शुरू करो तुसी जी ठीक है सियाली साहब मौजूद ने चलो जी काशिफ भाई मैनू इजाजत दिओ भाई बस मैं अज वास्ते इन्ना ही काफी तुसी थोड़ा जा टोर के रखो ठीक है ते मैं जावांगा कलर मैं चुक जाना उन्हां तिकर ते चलो कोई थोड़ी गुफ्तगू मैं एडमन नहीं हूँ फिर कोई गुस्ताख है चलो कोई गल नहीं हो ये कादियानी आ गया उस्ताद जी दिहाड़ी लगाते जाएं कादियानी आ गया कोई भी नहीं आया नहीं है आ गया मियां साहब थल्ले है जी जनाब कौन कादियानी हाई जी बोलो मनसब साहेब मियां साहब अच्छा नहीं बोलना ते थल्ले पवो जाके घुगू कौम एवें मुंह चुक के काल पा के ते बह जांदे हो गल करो जिहड़ी गल करनी कोई गालां ही कढ दिओ मर जाओ कोई कादियानी हो ये कोई तरीका है मुंह चुक के आके बह जांदे हो अच्छा यार मैं चला वा मैं जाना भी है ते 1 घंटे की बराड़ असी बोली सी 1 घंटा ते 8 मिनट हो गए अलहमदुल्ला ते इन्ना ही काफी है भाई ठीक है कबूल करो उन्हां तक तुसीं थोड़ा टोर के रखो सियाली साहब भी तशरीफ ले आंदे ठीक है अस्सलाम ठीक हो गया वालेकुम अस्सलाम।